السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا تو فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے۔ یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ کی بھلائی چاہنے والا تھا وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے موسیٰ، فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دے، لہٰذا آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیے۔ یہ سن کر مجبوراً موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور مصر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور آپ اللہ کے پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مریم کی نسبت سے آباد ہوا تھا اور یہ بستی فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو آپ کے پاس نہ کھانے پینے کا کچھ سامان تھا، نہ اچھی سواری اور نہ کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتوں کے سوا کھانے کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں تک اکیلے چلتے رہے۔ یہ وہ راستہ تھا جو آپ نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ اسے طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس مشکل اور سخت سفر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لے گئے جہاں سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو پلایا کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے اور ان لوگوں سے دور دوسری طرف 2 عورتیں اس انتظار میں کھڑی ہیں کہ لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو وہ پانی لے سکے۔ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں ان عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان خواتین کی حالت پر رحم آیا جو ایک کنارے کھڑی تھی اور کوئی بھی آدمی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور اپنا شہر چھوڑنے کو مجبور ہو گئے تھے، لہٰذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور کنویں کے قریب گئے۔ آپ نے وہاں موجود چرواہوں کو پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام کوئی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی مضبوط اور لمبے چوڑے انسان تھے، لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے ڈول حضرت موسیٰ کو دیتے ہوئے کہا کہ لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہو تو کھینچ لیجئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے چھوڑ دیا۔ حضرت موسیٰ اس وقت تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی جس نے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو اکیلے ہی کھینچ کر کنویں سے پانی نکالا جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔
मूसा अलैहिस्सलाम ने उन खवातीन को पानी दिया और पीछे हट गए। उस वक्त धूप और गर्मी शदीद थी और हजरत मूसा ने कई रोज से खाना भी नहीं खाया था। आप अकेले और शहर में अजनबी थे, सर छुपाने के लिए भी कोई सहारा न था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम थकान से चूर होकर पास के एक दरख्त के साए में बैठ गए। आपने बारगाहे खुदावंदी में दुआ की कि ऐ मेरे रब, मैं उस खाने का जो तू मेरे लिए उतारे मोहताज हूँ। इधर जब ये दोनों खातून कुएं का पानी इस्तेमाल कर चुकी तो वापस अपने घर चली गई। दरअसल ये दोनों खातून हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी। जब वो दोनों आम दिनों की निस्बत घर जल्दी वापस आई तो उनके वालिद हज़रत शुएब ने फरमाया, ऐ मेरी बेटियों, इस कदर जल्दी वापस आ जाने की क्या वजह है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि आज कुएं के पास एक नेक नौजवान मिला था। उसने हम पर रहम किया और हमारी जानवरों को पानी पिलाने में हमारी मदद की। इस पर हज़रत शुएब ने कहा कि जाओ और उस नेक नौजवान को मेरे पास बुलाकर लाओ। चुनाचे उनमें से एक साहिबजादी चेहरे को कपड़ों से ढाके पर्दा करते और शर्माती हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गई और उनसे कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दे जो आपने आज हमारे लिए किया है। हज़रत मूसा पहले तो उजरत लेने के लिए राज़ी नहीं हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वो शख्स अल्लाह के पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम है तो आप उनकी ज़ियारत और मुलाकात के इरादे से उस खातून के साथ चलने को तैयार हो गए। हज़रत मूसा ने उस खातून से फरमाया कि आप मेरे पीछे रहकर रास्ता बताती जाओ और इस तरह आप हज़रत शुएब के मकान तक पहुँचे। हज़रत मूसा को देखकर शुएब अलैहिस्सलाम ने आपका इस्तकबाल किया और अपनी बेटियों को खाना हाजिर करने को कहा। फिर हज़रत शुएब ने फरमाया कि बैठिए और हमारे साथ खाना खाइए। हज़रत मूसा ने उनकी बात मंजूर ना की और फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। हज़रत शुएब ने कहा कि खाना ना खाने की क्या वजह है? इस पर हज़रत मूसा ने कहा कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि मेरा ये खाना उस अमल का बदला ना हो जाए जो मैंने आपके जानवरों को पानी पिलाकर अंजाम दिया है, और मैं नेक अमल पर बदला लेना कबूल नहीं करता। हज़रत शुएब ने फरमाया, ऐ जवान, ऐसा नहीं है, ये खाना आपके अमल की आइवज़ में नहीं होगा, बल्कि ये मेरे और मेरे ख़ानदान की आदत और रिवाज है कि हम मेहमान नवाजी किया करते हैं और मुसाफिरों को खाना खिलाते हैं। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ बैठ गए और आपने खाना तनावुल फरमाया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने शुएब से मिस्र के अहवाल, फ़िरौन के साथ गुज़रे वक्त अपनी पैदाइश से लेकर फ़िरौन के आपकी जान का दुश्मन बन जाने के मुतालिक तमाम हालात बयान किए। हज़रत शुएब ने फरमाया कि अब आपको फ़िरौन और उसके सिपाहियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जालिमों से निजात पा चुके हैं, क्योंकि यहाँ मदियन में फ़िरौन की हुकूमत और सल्तनत नहीं है। जब मूसा अलैहिस्सलाम खाना खा चुके और गुफ्तगू भी कर ली तो हज़रत शुएब की एक बेटी ने अर्ज़ किया, अब्बा जान, आप इन्हें उजरत पर मुलाजिम रख ले कि ये हमारी बकरियां चराया करे और ये काम हमें ना करना पड़े। बेशक अच्छा मुलाजिम वही होता है जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी। हज़रत शुएब ने अपनी साहिबजादी से कहा कि तुम्हें इनकी कुव्वतो अमानत का इल्म कैसे हुआ? खातून ने अर्ज़ किया कि कुव्वत तो इससे ज़ाहिर होती है कि उन्होंने तन्हा कुएं की डोल को अकेले खींच लिया जिसको 10 से कम आदमी नहीं उठा सकते,
और अमानत इससे जाहिर है कि इन्होंने हमें देखकर सर झुका लिया और नज़र ना उठाई और मुझसे कहा कि तुम पीछे चलो, ताकि ऐसा ना हो कि हवा के झोंकों से मेरा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा दिख जाए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आला अखलाक और शराफत से बहुत मुतासिर हुए और कुछ देर सोचने के बाद हज़रत मूसा को एक पेशकश की कि आप मेरी एक साहबजादी से निकाह कर ले। हज़रत शुएब ने कहा कि इस निकाह का महर ये होगा कि आपको 8 बरस मेरी मुलाजमत करनी होगी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस पेशकश पर रजामंद हो गए। इस तरह हज़रत मूसा और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के दरमियान ये वायदा हुआ और हज़रत मूसा का निकाह हज़रत शुएब की बड़ी साहबजादी जिनका नाम सफूरा था उनके साथ हो गया। हज़रत मूसा ने 8 बरस के बजाय पूरे 10 साल की मियाद पूरी फरमाई और हज़रत शुएब की बकरियां मदियन के वादियों में चराई। मदियन में गुजरे वो 10 साल हज़रत मूसा की ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन और पुरसुकून वक्त था। हज़रत मूसा को मदियन जैसे इलाके में रहने का मौका मिला जहाँ फलों और मेवों की कसरत थी। आपको हज़रत शुएब जैसा ससुर और उस्ताद मिला जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा और सफुरा जैसी नेक सिफत हमसफ़र मिली जिससे आपकी ज़िंदगी मुकम्मल और मज़ीद खूबसूरत हो गई। लेकिन हज़रत मूसा अपनी तमाम ज़िंदगी चरवाहे बने नहीं गुजार सकते थे। बावजूद इसके कि हज़रत शुएब के पास मदियन में रहना ही हज़रत मूसा के लिए गनीमत था, मगर वो इसे अपना फ़र्ज़ समझते थे कि वो अपनी कौम बनी इसराइल की मदद के लिए जाए जो गुलामी की जंजीरों में गिरफ्तार है और जहालत, नादानी और बेखबरी में गर्क है। अल्लाह ने हज़रत मूसा को फ़िरौन के हुकूमत को उलटने के मकसद से खड़ा किया था और यही एहसास उन्हें मिस्र जाने पर आमादा कर रहा था। लिहाजा 10 सालों बाद शुएब अलैहिस्सलाम की इजाज़त से हज़रत मूसा अपनी जौज़ा सफुरा के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, हमने देखा कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के जुल्म सितम से महफूज रखा और आपने मदियन में पनाह ली। आपकी नेकी और शराफत का सिला यही मिला जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम जैसी बखूबी हस्ती के साया ए रहमत में आपको एक नेक हमसफ़र बीवी मिली और एक आरामदेह और महफूज मकाम में आपको पनाह हासिल हुई। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन मता नेक औरत है और हलाल रिज़्क जो एक सालेह बंदे की सबसे अहम ज़रूरत होती है, हज़रत मूसा को मदियन में मयस्सर हुआ। इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के पैगाम और तबलीग के लिए इन तमाम आराइश और नेमतों को खैराबाद कहा और दावत दीन की खातिर इन तमाम रहमतों को कुर्बान करके फ़िरौन से टकराने के लिए कमर बस्ता हो गए। बिलाशुबा हर मुश्किल के बाद आसानी है और तमाम मुश्किल हालात में सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो बंदे का वाहिद सहारा होता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में वीडियो शेयर करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।